Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. So hello everyone, my name is Shubham Bhargav और आज हमारे साथ हैं the very own Aanchal Agarwal, Instagram influencer, I would say content creator, and she's growing and developing each and every day on her digital platforms. She's coming up with new and more entertaining reels and stuff on various digital platforms. And we are really lucky to have you here, Aanchal, for the second time, I'd say. Thank you so much, Shubham. Thank you so much for such kind words. I don't think itna zyada bhi kuch hai, but thank you so much. Thank you so much for having me for the second time. I think it's great validation that I spoke substance last time, so you're having me another time. But thank you so much for your time and doing this for me. Well, thanks a lot, and it's in fact a validation for us as well that we have done a good enough job to have Aanchal on our show. और ये पहले मैं आंचल से यही बात कर रहा था कि इससे पहले जब हमने बात की थी, we were in second wave and now we are in the midst of the third wave. So what are your thoughts on it? I mean, wave to wave ही हमारी बात होगी या what's the whole thing? मुझे लगता है कि अब हम थोड़ा बीच में भी बात करना शुरू कर देते हैं ताकि जो है ये वेव्स आना ही बंद हो जाए, वरना ये इस तरह से तो ऑर्गेनाइज करना थोड़ा सा कठिन भी है और नॉट ग्रेट फॉर द सोशल इकोनॉमिक क्लाइमेट ऑफ आवर कंट्री ऑल्सो. तो हम लोग बीच में भी बात करेंगे यार अब थोड़ा. Definitely. So let's get started with our interview. The first question which comes to my mind right now is, Aanchal, well, you are doing well, you are going on the digital platforms. अब उस टाइम पे जब हमने पहले बात की थी तो I remember you said कि एक saturation point की तरफ मैं भी आ रही हूँ कि I might take a break from making new videos क्योंकि अब वो ideas की तरफ थोड़ा dearth है, but now you have started posting more content. Now you are coming back into your own. So what changed and what happened at that point of time? यार लास्ट टाइम जब हमने बात करी थी तो उसको तो 6-8 महीने हो गए. अब तो उसके बाद तो 4-5 ऐसे सैचुरेशन पॉइंट आ गए, फिर उनको ओवरकम भी कर लिया. अभी भी थोड़ा सा सैचुरेशन वाला ही चल रहा है, पर आई थिंक वो जो सैचुरेशन वाली बात है वो तो हर कंटेंट क्रिएटर के उसमें आती ही रहती है क्योंकि व्हेन यू कीप क्रिएटिंग समथिंग एवरी डे, व्हेन यू आर डूइंग समथिंग वेरी कंसिस्टेंटली, यू आर द फर्स्ट कंज्यूमर ऑफ योर कंटेंट. तो आपको एक तरह से आप भी बोर हो जाते हो, एक फटीग भी आ जाता है, आपको लगता है कि यार अब इसमें वो बात नहीं रही. नाउ वी वांट टू एक्सप्लोर मोर, आई वांट टू डू बेटर एंड एक्सप्लोर मोर क्रिएटिव वेज टू क्रिएट कंटेंट. और भी जॉनर्स मुझे एक्सप्लोर करने, तो वो तो हमेशा चलता ही रहता है. अभी भी फिलहाल चल रहा है. देन देयर आर सो मेनी क्रिएटर्स राइट नाउ in the scene, so they also keep creating more content और उससे भी नए waves आते हैं, नए ट्रेंड आते हैं कि किस तरह का कंटेंट अभी जनता कंज्यूम कर रही है. तो वो तो बहुत ही मुझे लगता है कि वो सैचुरेशन वाला तो वो ग्राफ ऊपर नीचे चलता ही रहता है. पर अब मुझे थोड़ा सा एक्चुअली नाउ लास्ट टाइम व्हेन वी स्पोक आई वाज स्लाइटली फिजिटी दैट सैचुरेशन हो गया है, फॉलोअर्स कम हो रहे हैं, उतनी ग्रोथ नहीं है. So but now I think over time I have made peace with it that these things will keep happening. There will be times when my content will do really well because I am doing really well. Then there will be times when my content will not do well. I will not have the same growth like like I was having earlier. तो वो चीज अब मैंने एक्सेप्ट कर ली है, तो now it doesn't bother me as much. Last time हमारी जब बात हुई थी तब तो I was actually tense and stressed. तो उसके मुकाबले अब तो मतलब बहुत बदलाव आ चुका है, सोच में भी बहुत बदलाव आ चुका है, थोड़ी सी मैच्योरिटी भी आई है. आई थिंक ज्यादा समय भी हो गया इसलिए. सो वो चेंज अब आ गया है. तो नाउ आई लुक फॉरवर्ड टू सच सैचुरेशन बिकॉज अब लगता है कि यार कोई सैचुरेशन आएगा, ऐसा मोमेंट आएगा कि लगेगा कि यार अभी कंटेंट थोड़ा सा मजा नहीं आ रहा, मुझे भी नहीं आ रहा या ऑडियंस को भी नहीं आ रहा, तो आपको वो एक और जगह देता है टू एक्सप्लोर मोर. Correct. And now, well, everyone should know that Aanchal is now venturing into a new field. भाई इसको field कहें या whatever you want to call it, she is now launching her own merchandise. और in fact, she has quite a few taglines. I mean, वो मैंने note down करके रखे. I want to call them out. Friend zone लोगों की नेता और एक तरफा आशिक, तुम किसका काट रहे हो. So these lines and many more like this will be on the t-shirts or whatever merchandise that will come in. So tell us a little bit more about how do you come up with these lines and when did the idea of the whole merchandise and stuff came in? So I actually never thought of going the merchandising way, but
a lot of people were reaching out, जो भी content creators और बाकी किसी भी popular चीज का merchandise बनाते हैं, so those teams were reaching out to me. Then I saw it as a great opportunity कि कोई opportunity आ रही है, so I should do it. तो मैंने कई जगह पे बात करी, फिर एक टीम मुझे बहुत अच्छी लगी, Grow 91 के साथ मैंने अपना merchandise create किया है, उनकी टीम मुझे बहुत अच्छी लगी, उनके डिजाइन्स मुझे बहुत अच्छे लगे, तो I thought यार let's do it, because that is also like in a way positioning yourself as a brand in the scene, that gives another dimension to your personality. कि आंचल है, then अब इसका merchandise भी है, so there is something more to her than just the Instagram and Twitter. So मेरा idea merchandise, like my thought of going the merchandising way was to position myself and to create one more entity for me. बाकी जो लाइंस वगैरह है, ये तो यार आप लोग जो इंस्टाग्राम में जोक्स में सुनते हो मेरे, वही होता है, वही सब है. फ्रेंड जोन वाला जो है वो एक थीम तो मेरे सारे कंटेंट में चली रही होती है हमेशा. सो वो चीज जो है वो मेरे से भी रिलेटेबल है. लोग जब मुझे मेरा कंटेंट देखते हैं तो वो चीज उस चीज को आइडेंटिफाई करते हैं मेरे अंदर, और वो चीज जो है जनता में भी बहुत ज्यादा वो है, पॉपुलर है. कि कई लोगों को, मुझे लगता है हर इंसान को ही लगता है कि वो फ्रेंड जोन है. जो भी आशिक प्यार में मारा हुआ है उसको लगता है कि मेरे साथ ही गलत हुआ है. तो वो एक तरफा आशिक लोगों की है, तो वो एंथम ही है कि भाई हम तो फ्रेंड जोन हुए हैं. तो वो चीज जो है वो मैं उस चीज को मुझे उस पे कुछ तो क्रिएट करना था. तो पहले जब कंटेंट क्रिएट करना शुरू किया, लोगों को पसंद आने लगा. फिर जब मर्चेंडाइज का मौका आया तो मैंने वही चीज को मर्चेंडाइज में मर्ज करके उस पे चीजें बनाई है, ताकि अगर आपको शायद नहीं भी पता है कि ये लाइनें मैंने कही हुई है या ये मेरे जोक्स में आती है, फिर भी अगर आप कहीं मर्चेंडाइज देखते हो तो यू वुड रिलेट टू इट अदरवाइज ऑल्सो. So it's like both ways से वो चल रहा है. So just trying to slightly capitalize on my friend's own life. Right. और जब ये idea पहली बार pitch हुआ in front of you, I mean the whole merchandise and stuff, was it something completely new and it took a lot of time for you to gel in with it, or was it something which was always there in the back of your mind कि नहीं I have to grow, तो इसलिए I will put my feet in different fields? So मुझे मेरा ये तो हमेशा से मानना है कि मुझे डाइवर्सिफाई करते रहना है, बिकॉज प्लेटफॉर्म्स are not it's like we are not there because of the platforms give us the space to present ourselves, our content, but platforms can exist today, can not exist tomorrow. So it is very important to diversify also. तो मेरा हमेशा से ये था कि मुझे और भी कई चीजें तो क्रिएट करनी ही है, जिससे थोड़ा मोनेटाइजेशन भी चलता रहे और जिससे थोड़ी सी पोजीशनिंग भी होते रहे. तो मर्चेंडाइज का थॉट था हमेशा से, बट आई वाज नॉट वेरी प्रोएक्टिव. मैंने ये नहीं सोचा था कि यार करना ही है, कभी ना कभी करना था. एंड ऑल्सो मुझे ये भी लगता है कि जब आप अपना खुद के साथ रह रहे होते हो, आप अपना काम कर रहे होते हो, आप अपनी ग्रोथ इतनी ऑब्जेक्टिवली देख नहीं पाते. तो मैंने अपनी ग्रोथ उतनी ऑब्जेक्टिवली देखी नहीं थी. जब मैंने मर्चेंडाइज लॉन्च भी किया, मुझे नहीं लगा था कि लोग खरीदेंगे. मुझे ये लग रहा था कि यार अभी तो मैं इतनी पॉपुलर हुई नहीं कि कोई इंसान मेरे लिए कुछ पैसे खर्च करके या तो मेरी बनाई हुई टी शर्ट लेगा या हुडी लेगा, ऐसा कुछ. पर वो चीज जो है वो टीम्स को समझ में आता है जिनका वो काम है. जैसे जो मर्चेंडाइजिंग टीम थी, उन्होंने मुझे कन्विंस किया कि नहीं आंचल, दिस इज द राइट टाइम, यू कैन डू इट, एंड जाएगा, सेल्स भी होगा और नहीं भी होगा तो वी विल वर्क अराउंड इट. आपके कंटेंट में भी विल इनकॉर्पोरेट इट वो सब. तो उससे मुझे थोड़ा सा पुश मिला, थोड़ी हिम्मत मिली कि ठीक है यार कर सकते हैं. क्योंकि एक चीज ये भी होती है कि हम समझते हैं कि यार कोई चीज तभी करेंगे जब वो सक्सेसफुल होने वाली होती है. जो परफेक्शन चेज कर रहे होते हैं ना, मेरे साथ भी वो था कि नहीं यार अगर मैंने लॉन्च कर दी और बिकी नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा यार, ये तो मतलब एकदम ही ऐसा, मतलब कॉन्फिडेंस खत्म सा हो जाएगा. खत्म तो ज्यादा हो गया, मतलब कम हो जाएगा. तो पर फिर हमने की लॉन्च, थोड़ी मेहनत करी, डिजाइन्स पे काम किया काफी ज्यादा. तो अच्छा चल रहा है, अभी अच्छा लग भी रहा है. तो थॉट एक था, पर वो करेज नहीं थी कि यार चलो कर ही लेते हैं. वो ग्रो 91 की टीम की वजह से आई. उन लोगों ने काफी लगातार कन्विंस किया, डिजाइन्स वगैरह में बहुत ज्यादा मेहनत की मेरे साथ, तो उससे वो आया. अब देखते हैं कितना आगे तक जाता है. Definitely, and we hope कि it goes to great lengths as we all are hoping. And my next question from you is, अभी आप हो कहाँ? I mean, at this point of time, where you are residing in Mumbai, I guess? Yes, I'm in Mumbai. Yeah. So मुझे देख के आपको पता चला होगा I'm in Delhi. Delhiites have that, वो जोक भी बहुत चल रहा है. Delhiites have that kind of a thing कि Antarctica पे जाके भी यही बोलेंगे कि Delhi is colder than Antarctica. तो वैसे actually यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है. What are your thoughts on? I mean, इस topic से थोड़ा हटके, but the point is, what are your thoughts on
typical Delhiites and people like this जो बोलते रहते हैं, बताते रहते हैं ऑनलाइन भी और हर जगह पे भी कि यहाँ की सर्दी बाकी की सर्दी से बहुत अलग है? यार मुझे तो लगता है कि मैं भी वो टिपिकल इंसान ही हूँ जो मुंबई वालों को बताता रहता है कि यहाँ की सर्दी कुछ नहीं होती, क्योंकि मुझे पर्सनली ठंड बहुत पसंद है। मैं इंदौर शहर से हूँ, इंदौर में भी बहुत ठंड पड़ती है, तो मुझे तो ठंड का शौक है। और मैं पिछले हफ्ते दिल्ली में थी, दिल्ली में भी बहुत अच्छी ठंड पड़ रही है। तो वहां पे, क्योंकि पता है मुंबई में ना आप 12 महीने एक ही चीज एंजॉय कर रहे होते, वो वैरायटी नहीं आती। दिल्ली में क्या है कि गर्मी भी एकदम कड़ाके की मतलब गर्मी भी एकदम तपती पड़ रही है कि इंसान झुलस जाए, फिर ठंड भी एकदम कड़ाके की पड़ रही है कि इंसान सिकुड़ जाए, बारिश भी ऐसी आ रही है कि बाढ़ आ रही है। तो वो मतलब एकदम वो हो गया है कि हर चीज एक्सट्रीम होता है वहां पे। तो वो ना वहां के बंदे भी इसीलिए एक्सट्रीम होते हैं कि हमको भाई तुम्हारी ठंड कुछ नहीं है, तुमने हुडी पहन लिया तो तुम्हारी बेइज्जती कर देंगे कि भाई। और ये आप जो देखो, ये जो दिल्ली वाले होते हैं, फिर नॉर्थ इंडियन, सेंट्रल इंडिया के जितने भी लोग हैं जहाँ ठंड पड़ती है, मैं भी इंदौर से हूँ तो ठंड पड़ती है वहाँ, तो मुझे भी जब जैसे बॉम्बे में अगर ठंड लग जाती है ना तो बड़ा ऐसा दुख होता है कि अरे ऐसे कैसे हमको यहाँ ठंड लग गई। हम तो ठोस लोग हैं, हम तो इंदौर की, दिल्ली की ठंड सहन करके आए भाई, बॉम्बे में हमको कैसे ठंड लग रही है। तो मुझे लगता है कि मैं खुद वो इंसान हूँ। मैं बॉम्बे में बोलती रहती लोगों की अरे जैकेट कैसे पहन लिया आपने, भला ही खुद को भी ठंड लग रही है, कब कभी छूट रही है जो 2-4 दिन की ठंड पड़ती है उसमें, पर मानेंगे नहीं। राइट और हमें तो दिल्ली में रह के भी, एज यू राइटली पॉइंटेड आउट, सब एक्सपीरियंस हो जाता है। जब बारिश हो तो रोड हमारी नाव चलाने लायक होती है, और जब गर्मी हो तो सब सड़ जाते हैं। होता है तो वो तो हम सब एक ही नाव में। राइट और कोई भी चीज हो यहाँ एम्पलीफाई करने के लिए ऑलवेज पोल्यूशन तो है ही। कोई भी मौसम हो उसमें एडिड टिंच ऐड करने के लिए। तो मौसम से हटके कमिंग बैक टू योर कंटेंट, आई मीन नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, पहले भी जब हमने बात की थी, यू सेड योर मॉम एंड डैड आर आल्सो कमिंग इनटू योर वीडियोस, और काफी आई मीन लोग भी उसे काफी ज्यादा पसंद कर रहे थे। तो इन दैट पर्टिकुलर सेगमेंट कैन वी एक्सपेक्ट समथिंग न्यू इन द फ्यूचर? और ये कोलैबोरेशन जो है, जो फैमिली स्टफ है, हाउ इज इट गोइंग? मम्मी के साथ तो वीडियोस सब लोग बहुत पसंद करते हैं। पापा के साथ मुझे अनफॉर्चुनेटली उतना टाइम स्पेंड करने का मौका नहीं मिल पाता, क्योंकि वो लोग अलग जगह रहते हैं, मैं अलग जगह रहती हूँ। मम्मी फिर भी कभी कभी आती रहती है, तो मम्मी के साथ ज्यादा समय मिलता है, तो मम्मी के साथ ज्यादा वीडियोस आ जाते हैं। पापा के साथ उतना समय नहीं मिल पाता, तो कुछ वीडियोस आए हैं। पर मम्मी और पापा की दोनों की वीडियोस को ही काफी पसंद किया है लोगों ने। इनफैक्ट मैं तो चाहती हूँ कि मैं और उनके साथ वीडियोस बनाऊं, क्योंकि मुझे कई लोगों के मैसेजेस आते रहते हैं कि हम अपने मम्मी पापा के साथ रहते नहीं है, आपकी मम्मी के साथ वीडियोस देख के बहुत अच्छा लगता है। अनफॉर्चुनेटली पिछले 2 सालों में कई लोगों ने अपने परिवार के कई सदस्यों को खो भी दिया है, तो वो भी उन लोगों के भी मुझे मैसेज आते हैं कि इतना बहुत अच्छा लगता है आपके पेरेंट्स को देखकर, हमारे पेरेंट्स की याद आती है, यू नो इट ब्रिंग्स बैक फॉन्ड मेमोरीज, तो प्लीज और वीडियोस बनाया करो। तो मुझे ना थोड़ी सी ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी टाइप लगती है कि यार लोगों को अच्छा लग रहा है, दे आर फीलिंग नाइस मेरी मम्मी को देख के, उनकी बातें सुन के, तो फिर मुझे करना चाहिए वो। मतलब वो मेरे अंदर वो है कि मैं जब भी अपनी मम्मी से मिलूं तो मेरी मम्मी के साथ कुछ वीडियोस डाल दूं, ताकि लोगों को थोड़ा सा अच्छा लगे। वो स्वीट, वो नॉस्टैल्जिया वाला फैक्टर भी होता है, और मेरी मम्मी को भी पसंद है काम करना, तो मेरी मम्मी जो है वो बहुत एंजॉय करती है। पापा भी एंजॉय करते हैं, पर मम्मी तो एक्साइटेड रहती है। मतलब वो रोज मेरी जब उनसे फोन पे बात होती है तो कई बार वो ऐसे आइडियाज भी बताती रहती है मुझे कि यार मैंने ये आइडिया सोचा है, बता कैसा लगता है, अपन बनाएंगे जब मिलेंगे। तो मेरी मम्मी शी इज एक्चुअली ट्राइंग टू बिकम अ क्रिएटर हरसेल्फ, व्हिच आई वांट टू आल्सो। क्योंकि अब क्या होता है ना, बच्चे बड़े हो जाते हैं, सब अपने अपने काम में लग जाते हैं, तो मम्मियों का थोड़ा सा पर्पस कम हो जाता है। अभी अब वो अकेले रहती है, अब सबको उन्होंने सक्सेसफुल बना दिया है, तो एक तरह से वो भी वो पर्पस लेकर आता है उनके लिए, मम्मी के लिए कोई नई चीज आ जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है, इसलिए वो वीडियोस तो आप और एक्सपेक्ट कर सकते हो। मैं चाहती हूँ कि लोग एक्सपेक्ट करें, ताकि मुझ पे भी थोड़ा सा प्रेशर बना रहे कि मैं मेहनत करूँ और ज्यादा मिलूँ अपने पेरेंट्स से और उनके साथ बनाओ वीडियोस। क्योंकि एक तरह से वो ना फैमिली बॉन्डिंग वाली एक्टिविटी भी बहुत अच्छी है, कि हम लोग अक्सर फैमिली में भी फोन पे लगे रहते हैं, कम दिन मिलते हैं, फिर भी या तो टीवी देख रहे होते हैं या किसी रिश्तेदार के यहाँ चले जाते हैं। तो ये सारी जो छोटी छोटी वीडियो साथ में बनाना, ये एक्टिविटीज से बॉन्डिंग भी अच्छी मेंटेन रहती है फैमिली की। तो मुझे तो बनाना है यार, और वीडियोस बनाना है। और आई एम एक्चुअली वेरी थैंकफुल टू माय ऑडियंस, टू यू एंड एवरीवन एल्स, जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया और एनकरेज किया कि मैं ऐसे वीडियोस और बनाऊं। उन्होंने इसको खुले दिल से एक्सेप्ट किया, ताकि मुझे भी और मोटिवेशन मिल रहा है कि मैं बना सकूं। एब्सोल्युटली। और Achal, अभी in last week or so, I have talked to 3 or 4 content creators, influencers. तो सबसे एक glaring point जो ज्यादातर निकल के आता है, most of them
they had a lot to say about the comments or the online abuse which they get. Even if their content is absolutely harmless, even I mean, most of them, what they post is something which is completely harmless to anyone, but still they get a lot of stuff which pulls them back. I mean, 2 or 3 content creators were like this, जो कह रहे थे कि यार वो comments देखने के बाद हमारा मन ऐसा हो गया था कि यार अब थोड़े टाइम के लिए मैं ब्रेक ही ले लेता हूँ इससे. And it pushed them way below than what they were at that point of time. उनके confidence को down किया. And you are someone who is known for giving savage replies. That is one thing I absolutely love about your content and your comments. कि जो भी ऐसे comment देगा, you have that best kind of reply to shut them down. So what is your advice to the content creators who get a little pushed down by such comments? And what do you have to say about those people who post such ridiculous stuff? So मेरे पास तो कुछ कहने के लिए है नहीं. जो लोग ऐसे रिडिकुलस चीजें बोलते हैं, उनकी हेट है, वो हैंडल करे. आई डोंट हैव टू हैंडल दैट. बट जिन लोगों को ये मिल रहा है, आई वुड लाइक टू से कि यार इट्स ओके टू फील बैड. मतलब यू आर अ ह्यूमन बीइंग. कोई भी आपको आगे कह देगा कि यार ब्लॉक कर दो, मूव ऑन कर लो, सुनो मत. इंटरनेट पे सुननी तो सबकी पड़ती है. तो मुझे नहीं लगता कि वो सही एडवाइस है, क्योंकि आप चाहे इंटरनेट पे किसी अननोन इंसान का भी लिखा हुआ कुछ पढ़ रहे हो, किसी इंसान ने लिखा है आपको ये बात की, ये तो बात आपको पता है ना, तो बुरा तो लगता ही है. और बुरा लगना भी चाहिए, क्योंकि हम सेंसिटिव लोग हैं, क्रिएटिव लोग हैं, तो हमारे इमोशंस भी हमेशा चरम पर रहते हैं. तो इट्स ओके, बुरा लगना चाहिए. पर ये है कि यार जरूरी नहीं है कि हर इंसान को ही हर ट्रोल को कॉल आउट करना पड़े. क्योंकि अगर आप मुझे भी जब देखते हो, मैंने किसी ट्रोल को कॉल आउट किया, मैं हर वक्त तो नहीं करती. 100 लोग ट्रोल करते हैं, उनमें से 2-3 जो है वो फंस जाते हैं, तो वो ट्रोल हो जाते हैं, उनकी बेइज्जती हो जाती है. बट मेरे भी कई, आप इंस्टाग्राम पे मेरे 1 मिनट के वीडियो देखते हो, या फिर अभी ये इंटरव्यू में आपने मेरे को आधे घंटे के लिए इंटरव्यू कर रहे हो, आप मुझे मेरा पीक पे देख रहे हो, आप मेरा ये पीक परफॉर्मेंस देख रहे हो. दिस इज मी एट द हाईएस्ट परफॉर्मेंस कैपेबिलिटी ऑफ माइंड. देयर आर, बट दिस इज नॉट मी द एंटायर डे. देयर आर मोमेंट्स व्हेन आई आल्सो फील डाउन, व्हेन आई आल्सो फील बैड कि यार ये किसने क्यों कमेंट कर दिया. बट आई जस्ट वांट टू टेल ऑल दोज पीपल जिनको कमेंट्स मिलते हैं, जो पढ़ चुके हैं इस तरह के कमेंट्स, that it gets better. मतलब उस वक्त आपको बुरा लग रहा है, आपको शायद ब्रेक भी लेने की जरूरत पड़े, आपको अच्छा भी ना लगे इंटरनेट पे आना, बट ह्यूमन माइंड की ब्यूटी ये होती है कि वो ओवरकम कर लेता है चीजें, भूल जाता है. तो जब बुरा लगे, जब ऐसा डीमोटिवेटेड लगे, जस्ट हैंग इन देयर, बी काइंड टू योरसेल्फ, नो दैट यू विल बाउंस बैक. If not today, tomorrow. If not tomorrow, next week. If not next week, next month. It will take time to heal. बट ये चीज जो है वो विद टाइम थोड़ा कम होती जाएगी. आज अगर 1 हफ्ते के लिए दुखी है, शायद नेक्स्ट बार जब होगा तो 4-5 दिन के लिए होंगे, उसके बाद जब होगा तो वो थोड़ी सी ठोस चमड़ी भी बनती जाती है वक्त के साथ. और थोड़ा हम लोग ओवरकम करना भी जल्दी सीखते जाते हैं. पर नॉट एवरी डे इज अ ग्रेट डे. हो सकता है आज मेरा मूड बहुत अच्छा है और किसी ने मुझे ट्रोल कर दिया तो मुझे इतना फर्क नहीं पड़ा. पर हमारी जिंदगी में इतनी सारी चीजें चल रही है, कभी मूड बहुत खराब रहता है और उस वक्त आके कोई ट्रोल कर देता है, तो ऐसा लगता है कि यार पहले ही इतना मुसीबतों से जूझ रहे हैं और अब तुम भी आके मतलब हमें ही परेशान कर रहे हो. तो उस वक्त बड़ा दुख होता है. पर ठीक है यार, दुख हो रहा है तो दुखी हो लो, थोड़े टाइम में चला जाएगा. तो उसके बाद फिर तुम्हें और स्ट्रॉन्ग फील होगा. तो हम अनफॉर्चुनेटली इसको मिटा तो सकते नहीं है, ना ही हम खत्म कर सकते हैं. एज लॉन्ग एज इंटरनेट इज देयर, एज लॉन्ग एज इट कीप्स रीचिंग मोर पीपल, ऑफ कोर्स सब लोग अपना ओपिनियन, अपनी नफरत आके उगलेंगे ही. बट प्लीज नो दैट इट इज नॉट योर हिट टू हैंडल, इट इज देयर हिट, सो दे विल हैंडल इट. यू जस्ट नीड टू हैंडल योर ओन इमोशंस एंड योरसेल्फ. Right. Or Aanchal, now just to get this burden off my shoulder, the next question I'm going to ask is not from me, it's from our Instagram poll. Poll हमने किया था कि we are going to interview Aanchal, so what question you want us to ask her? तो सबसे पहले यही सवाल आया, who is Aanchal dating? So this is something. So you are not dating anyone at this point. I personally feel कितना why is that even a question? मतलब अगर आप मेरा content follow कर रहे हो तो आपको पहली बात तो पता होना चाहिए, और दूसरी बात अगर आपको नहीं पता है तो आपको मतलब भी नहीं होना चाहिए. I don't think it is relevant to anyone is dating or doing what they're in personal life. और सबसे फनी बात क्या है कि इंस्टाग्राम पे आके सब फॉलोअर्स वगैरह सब पूछते हैं कि किसको डेट कर रहे हो, शादी कब करोगे वगैरह वगैरह. और फिर यही लोग ना आंटियों का मजाक बनाते हैं कि आंटी लोग हमसे पूछती रहती है शादी कब करोगे. तुम भी तो वही कर रहे हो ना.
Right. मजाक तो अंकल इसलिए लोग मैंने पहले बोल दिया, I'm trying to बेचारी get this सिर्फ आंटी off my होती है। shoulder कि ये मेरा सवाल नहीं है, this is a question which has come, I mean जिसकी intensity सबसे ज्यादा थी, most of the replies were यही कि ask her when she's getting married, ask her who she's dating, ask her कि friend zone सिर्फ content डालती है, असल में she's like that, और if she's dating so weird। ये सारे के सारे बोलते रहते हैं कि आंटियां हमको शादी के लिए कहती रहती है, जबकि कहते हैं अंकल भी है, बदनाम बेचारी सिर्फ आंटियां होती है, और फिर ये खुद भी आके वही सेम हरकत करते हैं। और मतलब आपकी आंटी तो आपको पहचानती, तो उन्होंने मुझसे पूछ लिया, आप तो मुझे पहचानते भी नहीं हो, मुझसे आगे पूछ रहे हो कि डेट किसको कर रहे हो, शादी कब करोगे, बच्चे कब पैदा करोगे, बुढ़े हो रहे हो, उम्र निकली जा रही है, जैसे शादी करने से रुक जाएगी। सो मतलब इट इज वेरी लाइक, वो तो बहुत ही दोगला हो गया है। मतलब हमारा हम लोग ना आपस में जिनका मजाक बना रहे हैं हम वही बन रहे हैं। मैं भी हो सकता है करती होंगी ऐसी हरकतें, जिसका मजाक बना रही हूँ वही मैं हरकत कर रही हूँ, पर अभी मुझे मौका मिल गया तो अभी मैं उस चीज पे कैपिटलाइज कर रही हूँ। And you see how intelligently I took that off my shoulder. मुझे पहले ही पता था कि I can expect a reply like that, तो मैं पहले ही सेट करके बैठा था, नहीं, I have to specify from the beginning कि मेरा सवाल नहीं है। So the next question जो कि Instagram से ही आया है, it's not I mean concerned to your dating life. That next question is can we expect you moving towards the entertainment industry, towards more ad films and stuff like that, because a lot of people know you are someone who belong to that field, who has done work in that particular section as far as the entertainment industry on TV and ads are concerned. So are you planning in the future to move towards that as well? यार फिलहाल तो मुझे ना अभी तो मुझे कंटेंट बनाने में ही मजा आ रहा है। अभी मैं इसी में, और इसमें मेरी दुकान भी अच्छी चल रही है, इसमें मुझे ज्यादा हर रोज रिजेक्शन भी नहीं फेस करने पड़ रहे जो मुझे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में करने पड़ते थे कि भाई रोज ऑडिशन पे जा रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, और फिर उसके बाद भी 100 ऑडिशन दिए तो एक ऑडिशन में कहीं शॉर्टलिस्ट होते थे। तो वो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो थोड़ा एक उस समय एक वो लगने लगता है ना कि यार कब काम आएगा, थोड़ा सा रिजेंटमेंट बिल्ड होने लगता है। मुझे लगता है कि कंटेंट की वजह से वो थोड़ा सा ना जाने लगा है, वो कॉन्फिडेंस वापस से आने लगा है, क्योंकि आपको दिख रहा है कि शायद मौका नहीं मिला पर टैलेंट है आप में, लोग पसंद करते हैं आपको। तो फिलहाल तो मैं ये कंटेंट बनाने ही एंजॉय कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि वी आर नॉट गेटिंग कॉल्स फ्रॉम शोज, फ्रॉम एड्स, फिल्म्स और यू नो इवन टीवी, पर अभी फिलहाल मन नहीं है करने का। हो सकता है कि आज से 10 साल बाद जाके मैं रिग्रेट करूं कि मैंने क्यों नहीं किया, शायद वो उस समय गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, मुझे उस पर काम कर लेना चाहिए था। बट जिस चीज का मन नहीं होता करने का आजकल मैं वो नहीं करती यार बाद में, क्योंकि फिर वो भी रिग्रेट होता है कि यार मन नहीं था कर लिया, और फिर उसमें कोई जरा सी भी दिक्कत हो जाती है ना तो ऐसा लगता है तो पहले ही मन नहीं था, मन मार के किया, ऊपर से चलो इसमें भी भसड़ हो रही है। तो फिलहाल मेरा मन नहीं है, हो सकता है फ्यूचर में मन बदल जाए, हम कुछ करें, पर अभी तो इंस्टाग्राम, ट्विटर ये चल रहा है। मैं यूट्यूब बनाने की कोशिश कर रही हूँ, तो अगर यूट्यूब हो जाता है तो फिर आप यूट्यूब पे भी मेरा कंटेंट देख सकते हो, पर आई थिंक नेक्स्ट 5-6 महीने तो नहीं है, कोई प्लान नहीं है कोई करने का। Right, so coming to the last question of the day, in fact I'm loving this chat, I don't want to end it soon, but we all have time constraint, and you are also, I mean, someone who gets extremely busy in creating content as well. So at this point, our last question is related to your merchandise. क्या expected था आपको? How is it going on? And in the future, do you expect it to grow exponentially? या फिर अभी लगता है कि नहीं, जैसा चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है? मुझे लगता था, मैंने इतना सोचा नहीं था कि इतना चल जाएगा, इतने लोग लेंगे और उसके बाद उसके बारे में पोस्ट भी करेंगे, मुझे मैसेज करेंगे कि बहुत अच्छा लगा। और कई लोगों ने तो इंटरनेशनली भी ऑर्डर किया है, दे स्पेसिफिकली रीच्ड आउट टू द टीम दैट यू नो वी वांट टू ऑर्डर इन ऑस्ट्रेलिया, दुबई, कनाडा, यूएसए। सो कई लोगों ने इंटरनेशनली भी ऑर्डर किया, ये चीज मैंने एक्सपेक्ट की नहीं थी, तो मैं तो बहुत खुश हूँ जो भी रिस्पॉन्स है उससे। और ऑफकोर्स हर इंसान चाहता है कि उनका काम जो है वो एक्सपोनेंशियली ग्रो करे, मैं भी चाहती हूँ कि एक्सपोनेंशियली ग्रो करे, और शायद इसी से मैं एकदम करोड़पति बन जाऊँ, टी शर्ट की बेगम और हुडीज की बादशाह, जैसे तेजा ने प्लान किया था। अंदाज अपना मैं भी चाहती हूँ कि एकदम ऐसे ही मेरी भी दुकान चल पड़े, पर जितनी ग्रोथ है उससे मैं बहुत खुश हूँ। आई थिंक द टीम इज ऑल्सो वेरी हैप्पी एंड वी विल कीप लॉन्चिंग मोर प्रोडक्ट्स, और भी प्रोडक्ट्स डालेंगे और डिजाइन्स डालेंगे टी शर्ट्स, हुडीज में, और भी प्रोडक्ट लाइन और भी बढ़ाने की भी कोशिश कर रहे हैं, उस पर भी काम कर रहे हैं।
तो वो सब हम करते रहेंगे, पर इतना जो भी रिस्पॉन्स है अगर वो भी मिलता रहा तो उसमें भी हम खुश हैं। इससे ज्यादा जैसे जैसे मेरी खुद की पर्सनल पॉपुलैरिटी भी बढ़ेगी, जैसे जैसे लोग और कंटेंट कंज्यूम करेंगे, मैं खुद ग्रोथ करूंगी अपनी लाइफ में, वो चीज उसमें भी रिफ्लेक्ट करेगी, मर्चेंडाइज में भी मिरर करेगी, उतने ज्यादा लोग उसके बारे में जानेंगे। तो ठीक है यार, मतलब अच्छी ग्रोथ है, आप फ्यूचर में भी भगवान करे ऐसी ग्रोथ चलती रहे तो अच्छा है। Great. So thank you so much, Achal, for your wonderful words. And I hope, and we from FPJ ask all our audiences and everyone who is watching the show to head to grow91.com right away and get your hands on the favorite merchandise. आंचल ने बहुत ही अच्छी, इनफैक्ट बहुत ही एंटरटेनिंग लाइंस टी-शर्ट्स पे और स्टफ पे पुट ऑन किए, वो पहन के निकलोगे तो डेफिनेटली लोगों की एक बार नजर तो जरूर पड़ेगी। नाउ इट डिपेंड्स ऑन यू, क्वालिटी भी बहुत अच्छी है यार, एकदम सॉफ्ट टी-शर्ट्स है। अगर गलती से आप फ्रेंड जोन के बाहर आ गए, आपको कोई किसी को हग या कडल करने का मौका मिल गया तो उन्हें चुभेगी नहीं। सो रिमेंबर दिस लाइन, चुभेगी नहीं और चुभनी नहीं चाहिए। सो everyone please go to grow91.com, like, share and subscribe, follow Achal, follow us. Thank you so much for being with us, Achal. It's such an honor to have a chat with you. It's always so much fun to talk to you, and thank you so much for your time. Thank you so much, Shubham. Thank you so much for having me, and I'm really grateful to you for always sharing your platform, giving your platform to me for me to talk about my content, my work, and now merchandise. So thank you so much for always being a supporter and always being a cheerleader and sharing my work with people.